Hello friends, welcome to my YouTube channel, and in this video we are going to talk about how to connect your GTM account with the GA4. Okay, so we will be learning all the things in very simple step. So you have to stay with me and we are going to start. Okay, in the last video we were talking about how to connect your website with the GTM account. Okay, but in this video we are going to talk about like how to connect your website with GA4 and GTM. Okay, so let's start it. So first of all you have to create your GA4 account. So we are going to search it right now. So Google Analytics account. Then you have to click on this website. इसके बाद आपको you have to come inside and we are going to create a new account. Okay, so you have to click on sign in to analyticals and so we are using GA4 the first time, so we'll click here, and right now we are going to create our account from scratch. Okay, so stay focused. And so first step towards the creating account, that is like you can give whatever you want to give. Like my website name is Lukasu, so I am giving the name of Lukasu. After that if you want to put it there, then you it's up to you. You can read all the things, and after that you have to give the name of your property. So property means ki you can give like I'm giving a name of like GA4 1 second. Yeah, GA4. Let me put in the capital letter GA4. सो प्रॉपर्टी मीन्स कि तुम जो प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो, तो इन द फ्यूचर व्हेन यू विल ट्रैक योर वेबसाइट डाटा, तो इट विल हेल्प यू. ओके, तो वट एवर यू वांट टू गिव द नेम. तो राइट नाउ आई एम गिविंग द नेम GA4 टू लुकासू. ओके, तो हेयर यू कैन यू सेलेक्ट योर कंट्री. राइट नाउ आई एम सेलेक्टिंग माई कंट्री, तो आई एम सिटिंग इन इंडिया. तो इंडिया, this is the Indian time zone, and we have to select here Indian currency. So Indian currency, so this is Indian currency, and we have to click on next. After that we will get these details. Here we have to select our industry, but like my website is related to the clothing industry. Okay, so I will select what. Let me check it what I'm getting here. So I'm cloth. So let's see what kind of. So I have finalized the shopping here because my website is relating to the shopping. So I will click on shopping here, and after that you can select your small 1 to 10 employee and then click on next. After that you have to select the goal, because GA4 will give you some like more tools, okay, to analyze your data. Okay, so what you have to do while creating the GA4 account, you have to give the whole information. So right now I'm going with drive sales and view users and this one ट्रैफिक. तो इसका मतलब बेसिकली ये होता है कि जब भी इसके बेसिस पे GA4 अपने को ज़्यादा एक टूल्स वगैरह ज़्यादा एक तरीके कस्टमाइजेशन ज़्यादा देगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, कि वो अच्छे से समझ पाएगा अपने को. तो देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड हेयर यू हैव टू सेलेक्ट इंडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग दिस डिफर कंट्री टू कंट्री. ओके, तो हेयर यू हैव टू सेलेक्ट ऑन I accept and I accept. Right now our GA4 account is all completed. Yeah, so right now like choose a platform means key. Right now we are doing for our website, so we have to select website, and here we have to put the link of our website. So my website link is this one, and I will copy this and I will paste it. Okay, so you don't have to add this one, yes, because it's already there. Okay, so here website name you can put, and my website name is Lukasu. 1 second. Yes, so here I have done all the things. Let's click on the create and continue. We are about to finish. Here, like we have almost created our account, so right now we have to link something here. So you have to click on Lukasu. After that we're gonna use here, like right now I'm installed with Shopify. Okay, so install
because now we gonna connect our like GTM with the GA4. So here I'm going clicking on next, and this is my copy ID. So here I will check it and test installation. I will click here. Okay, तो अभी क्या करना है, तुम्हें बहुत अच्छे से ध्यान से मतलब अच्छे से वो करना है। तो अभी आपको GTM अकाउंट पे फिर दोबारा आ जाना है, और वहाँ जो ये आईडी है ये हम वहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आके आपको गूगल एक टैक्स अकाउंट में आ जाना है। ये होम विंडो है जो गूगल GTM की, एंड हेयर यू हैव टू क्लिक ऑन टैक्स। टैक्स पर क्लिक करने के बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट ए न्यू टैक्स। तो आई विल क्लिक ऑन न्यू। here again you have to click here, and then you have to click on Google Analytics. Okay, and then Google tag, and right now we are going to paste this ID. Okay, this one. So I am pasting it over, and I will paste this one here. So yes, so we have pasted, and it's auto. It's mean कि जब भी ये ट्रैक किसको करेगा, जब भी कोई वेबसाइट पे जो भी कुछ यूजर एक्टिविटी करेगा जिस भी पेज पे, तो उसको ये सबको ट्रैक करने वाला। तो इसका मतलब ये है, तो इट्स ऑलरेडी ऑटोमेटिकली फिक्स्ड देयर। ओके, तो नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव, एंड इफ यू वांट टू गिव सम नेम टू, लाइक राइट नाउ आई एम गिविंग द लुकासू टैग by GTM. So I am giving this name, and right now I have to click on save. Okay, so our tag is ready. Yes, our tag is ready. So now you have to click on this. So here you can see our tag is ready totally, and after that what we have to do, we have to click on this preview. Okay, to check everything is working or not. So we are going to click on preview, and it will ask you now Google Tag Assistant. Okay, so let's see what comes here. Here again we will put our website link. So copy and paste it. I am connecting my website, so it will take some time. Just give it. यस, तो इट मीन्स जब ये मेरी वेबसाइट आई है, तो इसका मतलब मेरी जो वेबसाइट थी वो सही तरीके से इसने कनेक्ट कर ली है, ठीक है, वेबसाइट का URL डालते ही, ठीक है। तो अभी मैं इस पर कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अभी ये तुम यहाँ देख सकते हो, अभी जो अपना GA4 अकाउंट है और जो वेबसाइट के साथ जो कनेक्ट होने वाला था वो सब कुछ कनेक्ट हो चुका है। तो तुम यहाँ देख सकते हो फायर्ड टैग्स फायर्ड का मतलब ये होता है जो भी वेबसाइट पे जो एक्टिविटी होगी वो सारी यहाँ काउंट हो जाएगी, और टैग्स नोट फायर्ड का मतलब होता है कि ऐसा तुम्हारा मतलब यदि जब भी यहाँ कुछ शो हो, इसका मतलब देयर आर सम इशू विच यू हैवंट फिल्ड दैट, एंड मतलब कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, तो तुम्हारी वेबसाइट सही से काम नहीं कर रही है, मतलब सही तरीके से वो गूगल एनालिटिक्स के साथ काम नहीं कर रही है। तो व्हाट यू हैव टू डू इन दैट सिचुएशन, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। ओके, अगेन देन इट विल गेट सोल्ड। ओके, तो अभी तो अपना हो गया है। अभी अपन यहाँ चेक करेंगे, तो इसको you can retest it if you want to do it, and now we have to come on the home page. Let's see. Okay, तो अभी क्या है, GA4 के जो होम पेज पे आने के बाद ये ऐसा शो हो रहा है। तो इट मीन्स कि इट समटाइम इट कैन शो इट मे टेक 40 आवर्स योर प्रॉपर्टी स्टेट कलेक्टिंग डाटा। तो इट मीन्स कि समटाइम इट कैन टेक more than 2 days, okay, to collect the data. Okay, तो क्योंकि अभी we are doing first time, तो sometime it might take time, but most of the time it does not take time. Okay, तो let's go on the home page again. तो अभी मैं जहाँ टॉप पे क्लिक करने जा रहा हूँ, and I am going on clicking on this one. After that you have to click on this one, and now तो अभी दोबारा हमें इसको दोबारा आपको क्या करना है, दोबारा इस पे जाके आपको गूगल पे सर्च करना है GA4। ओके, एंड देन यू हैव टू इस वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद गो टू एनालिटिकल्स। तो अभी अपना सारा काम हो गया है, बाकी का जितना भी काम था। अभी वी आर गोइंग टू चेक इट कि इज़ देयर एनी एरर इट्स शोइंग और नॉट। तो अभी आपको सेव पर क्लिक कर देना है। अभी ये शो हो रहा है कि लाइक नो डाटा रिसीव फ्रॉम योर वेबसाइट। तो अभी अपन ने कुछ भी एक्टिविटी वहाँ वेबसाइट पर करी नहीं है। तो अभी नाउ वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटी ऑन वेबसाइट, तो लेट्स सी इट कनेक्ट्स और नॉट। ओके, तो अभी क्या किया है, मैंने मेरी दूसरी ईमेल आईडी से मैंने मेरी वेबसाइट को खोल लिया ताकि कुछ मैं एक्टिविटी करूँगा
एंड लेट्स सी व्हाट डज इट शो। ओके, तो अभी जैसे मैं कुछ वेबसाइट के मैंने प्रोडक्ट डाल रखे हैं, तो मैं इस पे जा रहा हूँ। इस पे जाके मैं इस पे कुछ एक्टिविटी करूँगा, इसको कुछ ऐड टू कार्ट करूँगा, तो लेट्स सी इट शोज और नॉट। ओके, तो अभी जैसे मैं कुछ पेज व्यू कर रहा हूँ अभी, ठीक है, तो अभी जैसे मैं ऐड टू कार्ट कर दूंगा यहाँ से कुछ ऐसा, ठीक है, तो व्यू कार्ट कर दिया मैंने, तो यहाँ मैंने कुछ एक्टिविटी करी है। और अभी हम चेक करेंगे कि ये मतलब अपनी वेबसाइट पे कुछ डाटा आया है नहीं आया GA4 पे। तो स्टिल वी आर नॉट सीइंग एनी डाटा, तो इट्स बिकॉज ऑफ कि लाइक राइट इट्स शोइंग कि नो डाटा रिसीव्ड फ्रॉम योर वेबसाइट। तो इट्स द मेन रीजन इज दैट कि इट समटाइम इट टेक्स टाइम फॉर 48 आवर्स। ओके, तो if still it is not working, then like I will also check it, and if it is not working then I will make one more video for that. तो फाइनली गाइस हमारी वेबसाइट GA4 से कनेक्ट हो चुकी है। तो लेट मी शो यू। तो मैंने जैसे कहा था कि ये थोड़ा सा टाइम ले सकती है, जैसे कई बार ये जैसे इसमें शो हो रखा है ऑलरेडी कि इट कैन टेक अप टू 48 आवर्स। ओके, बट ये जैसे मैंने यहाँ चेक किया तो मेरी वेबसाइट से कनेक्ट 1 घंटे के अंदर अंदर हो गया था। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें शो करता हूँ कि ये कैसे क्या शो करता है। तो अभी जैसे मेरी ये वेबसाइट है, ठीक है, अभी जैसे तुम देख सकते हो ये GA4 है। ठीक है, यहाँ अभी कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, एक एक्टिविटी है सिर्फ ये। अभी मैं कुछ एक्टिविटी करने जा रहा हूँ और तुमको फिर मैं शो करता हूँ कि ये किस तरीके से डाटा यहाँ चेंज होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मेरी जो वेबसाइट पे जो भी कुछ एक्टिविटी होगी वो मेरे को यहाँ दिखेगी। ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ अभी। तो ये जैसे मेरी वेबसाइट है, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, अंदर जाके मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, यहाँ जाके इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। जैसे ऐड टू कार्ट किया मैंने, ये कुछ इसको किया और फिर मैंने वी कार्ट पे गया और इसके बाद लेट मी फिल अप द पेमेंट डिटेल्स हेयर। ओके, तो दिस इज हाउ, तो ये एक्टिविटी मैंने करी है। ठीक है, तो इसके बाद मैं कुछ यहाँ मैं डाल देता हूँ, कुछ ऐसा कुछ डाल के अभी मैं तुमको दिखाता हूँ। अब यहाँ एक्टिविटी तुम देखो, दिख रही है? अभी दिखाता हूँ, देखो रिपोर्ट्स पे गए, रियल टाइम ओवरव्यू, ये देखो ये जो एक्टिविटी शो हो रहा है ना, लुकासो फॉर सुपर शॉपिंग कार्ड एंड दिस वन, ये एक्टिविटी है अभी की जो अभी अभी अपन ने रिसीव करी है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि अभी इसमें दिखा रखा है कि देखो मैं यहाँ पे इस पे गया, फिर शॉपिंग कार्ड पे गया, टू कार्ड किए, फिर चेकआउट किया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी वेबसाइट इससे कनेक्ट हो चुकी है। ठीक है, तो इससे आने वाली वीडियो में वी विल टॉक अबाउट some good topic, and like we will learn in the meta ads in the details। तो अभी हमारा यही टारगेट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड I have paid a lot of like hard work to make this video। So if you like this video then subscribe my channel and let's see you in the next video।